Good evening, everyone. Am I audible? Guys, if you can hear my voice, please comment में yes या no mention कर दीजिए. Am I audible? Yes, okay. So let's wait for 2 more minutes and then we will start our session. Okay. Okay guys, I think सभी को voice आ रही है. Yes, audible. Okay. Thank you, Krishna. Pura. Okay. So guys, before starting with this session, let me give you my brief intro. My name is Nikhil Goyal. I am a Quant and DLR faculty related to iQuanta, and I am a serial CAT 99 percentiler. So I hope I am audible to each and everyone. So let's begin with this session, guys. Okay. So topic name is time, speed and distance, and it is a very important topic in CAT. सभी को पता है, इसमें 2 क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो. बिल्कुल इसको बेसिक से समझते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. जनरली जब कोई फ्रेंड या कोई हम खुद भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें एक फीचर दिखाई देता है, एक स्पीड दिखाई देती है. वो स्पीड किस फॉर्मेट में दिखाई देती है कि वी आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, or we say we are driving at a speed of 80 kilometer per hour, right? Now, if you see, this speed is basically related to 2 things. First is the kilometer and second thing is hour. So can I say this speed is basically distance upon time? Because 60 kilometer वो 1 hour में चलता है, so that is our speed. Now this is very important formula. जनरली लोग इसको ही मिस कर देते हैं, बट कोई भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर आप प्रॉब्लम देखोगे वहां पे ये फॉर्मूला डेफिनेटली कनेक्ट हो ही रहा होगा. सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ इफ वी ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, वी कैन ऑल्सो से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. Also we can make another formula out of this, that is time is equal to distance upon speed. So these 3 are very basic formula, but almost time, speed and distance के हर क्वेश्चन में लगता ही है. बेटा ये ड्यूरेशन 1 आवर का रहने वाला है, अगर जरूरत पड़ेगा तो वी कैन एक्सटेंड ऑल्सो. ओके ओके गाइस, सो दीज आर 3 बेसिक फॉर्मूलाज. अब इन 3 बेसिक फॉर्मूलेज पे किस तरह के कैट के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेट्स डिस्कस टुगेदर. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज Ramesh covered a distance of 1040 km in 15 hours in 2 parts. Now you can see distance is 1040 km. So he has traveled this distance in 2 parts. Let's say the first part is x. So second part will be 1040 minus x, right? Now this first part, you can see he covered the first part by a car which was driven at a speed of 80 km per hour. So this is distance and speed is 80. The second part by a bike that was driven at a speed of 60. So you can observe distance is given to us, speed is also known to us. Next part is this. He covered this total distance in 15 hours. अब मेरे को ये वाला टाइम नहीं पता, ये वाला टाइम नहीं पता. How we can calculate? You can see time is equal to distance by speed. So can I say this person traveled x kilometer with a speed of 80, so time will be x by 80. In the same way, he traveled 1040 minus x at a speed of 60 km per hour, so time will be 1040 minus x by 60. And the total time is 15 because he took 15 hours to cover these 2 parts. यहां से हमें एक इक्वेशन मिली है. नाउ वी कैन इजिली सॉल्व दिस इक्वेशन. देखते हैं साथ में. तो इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम विल बी 240, दिस विल बी 3x, दिस विल बी 4160 minus 4x is equal to 15. This will be minus x plus 4160. This will be 3600. 15 into 240.
right? So from this we will get x, which will be 560. 4160 minus 3600. Now we got the value of x. पूछा क्या है? Find the ratio of distance covered by Ravi in two parts. So this is x. The remaining part will be 1040 minus 560. That will be 480. So this is the first part and this will be the second part. We have to find out the ratio of these two parts. So that will be 560 is to 480. Ratio निकालना सभी को आता ही है. So we can simplify. 0 से 0 cancel out. 8 7s are 56. 8 6 are 48. So that's why answer will be 7 is to 6. I hope this basic part is clear to each and everyone. किसी को इसमें कोई डाउट है? Shall we move on to the next one? Guys, आगे चलें क्या? Okay. Clear. ठीक है, थैंक यू राधिका, कृष्णा, चलें आगे. Okay guys, next question पे चलते हैं. Next question. This question came in CAT 2024 and question किस पे है? सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी तक सीखा है. The concept is speed is equal to distance upon time, or distance is speed into time, or time is distance upon speed. That's it. So CAT में क्वेश्चन उसी पे आया है. साथ में समझते हैं. A train traveled a certain distance at a uniform speed. So we do not know the distance, we do not know the speed. Had the speed been 6 km per hour more, so initial speed is not known to us, so I am taking initial speed is s. It would have needed 4 hours less. तो 4 hours less किससे कंपेयर कर रहा है? इनिशियल टाइम से कंपेयर कर रहा है. So initial speed I took s km per hour, initial time I took t hours. Now initial distance will be s into t, speed into time, the basic concept, right? Now according to the first statement, if the speed being 6 km per hour more, so that means we can say s plus 6 and time will be 4 hours less, so t minus 4. We are comparing with respect to initial, right? So this is our also distance, ये भी distance है. We can equate these two. Simplify करते हैं. st plus 60, right? यहाँ से जो cancel out हो सकता है, we can cancel out. So ये cancel out हुआ. 60 minus 4s is equal to 24. And this will be our first equation. I hope यहाँ तक सभी को clear होगा. Okay. Next, had the speed been 6 km per hour less, so this time speed will be s minus 6, and that it would have taken 6 hours more. So t plus 6, that is equal to st. Now we can simplify. ये कैंसिल आउट हुआ. यहां से आप बोल सकते हो -60 प्लस 6s इज इक्वल टू 36. ये हमें मिल जाती है सेकेंड इक्वेशन. वाई डिड वी इक्वेट टू एस टी? बेटा देखो प्रणब, क्या होगा अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि आपको जो मेनली क्या फाइंड करना है, सिंस दो वेरिएबल्स अननोन है तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर दो वेरिएबल्स है ना बेटा आपके पास, सो यू नीड 2 लीनियर इक्वेशंस. तो वो 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाए, इस वजह से ये एफर्ट डाला है कि इसको इसके साथ इक्वेट किया, इसको इसके साथ इक्वेट किया. आप जब इन दोनों को इक्वेट करते तो वहां पे आपको एक सिंगल लीनियर इक्वेशन मिलती, उससे आपका आंसर नहीं आ पाता. ठीक है प्रणव, क्लियर है पार्ट? Pranav, any doubt? Okay, ठीक है. So guys, we got 2 linear equation. Now we can easily solve these two. तो देखो 1 and 2 को आप ऐड कर दीजिए. So 1 plus 2 ये कैंसिल आउट हुआ.
2s is equal to 60. So s is equal to 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, s आपको मिल चुका है. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ s इन आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस तो आपको t भी मिल जाएगा. तो किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. लेट्स से वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, सो वी कैन से 60 minus 120 is equal to 24. So t आ जाता है 24 hour. We have to find out the distance. Distance is speed into time, so 24 into 30, which will be 720. So guys, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लगा है. क्वेश्चन केम ऑन दिस कॉन्सेप्ट विच इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो कैट इस तरह से बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है. सो समटाइम्स हम बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, बट वी फॉरगेट द बेसिक वन. सो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर रहें. एनी मोर डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? सर आइडियली इस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगना चाहिए? अब प्रांजल 2 minutes आर सफिशिएंट. 2 minutes अगर आप दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलिए साथ में देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को. तो आज आप थोड़ा सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए. मैं अपनी तरफ से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर रहा हूं, so that आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो. A man covers half of the distance. Please focus on this line. Half of the distance. So distance is not known to us. If I assume distance as something ax or d, I have to do half of it, right? Half of the distance at an average speed of 30. Then half of the remaining. So what will be left? I have to do again half of it, right? So if you observe, I have to do half. देन हाफ. पहले हाफ करना है फिर हाफ करना है. ठीक है सर, वी हैव टू मेक द इक्वेशन फॉर दी. हाँ अर्जुन, इक्वेशन से बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है. तो इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस बनती है लीनियर, आराम से आप कर सकते हो. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. सो फर्स्ट यू हैव टू डू हाफ देन हाफ. तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्टेंस को जो अज्यूम करने वाला हूं, आई एम टेकिंग डिस्टेंस एज 4d. The reason is it will make my calculation little bit easy, because if I take distance as d, I will be doing d by 2 then d by 2. So वो fractions को avoid करने के लिए what I did, I assumed distance as 4d, because यहाँ तो वेरिएबल लेना है ना. कोई किसी ने कंपलसरी तो नहीं बोला कि x ही लीजिए, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. So I took 4d to make my calculation easy. Now coming back to the question, a man covers half of the distance. इसका half, that is 2d at an average speed of 30. Now the remaining will be 2d. This is the remaining. Sir, yes sir, fraction will be avoided. Yeah. So remaining is 2d. उसका half d at an speed of 45 km per hour, and the rest on the foot, that is d at a speed of 10. So this is distance, this is speed. Distance, speed, distance, speed. तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है. ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में. द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज 2 hours 50 minutes. अब ये आवर्स और मिनट में दिया हुआ है, सो लेट्स मेक इट इनटू आवर्स. सो आई कैन से 2 + 50/60. आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है. 0 से 0, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट 17/6 आर. फाइन. चलिए अब टाइम कैलकुलेट करना वी नो हाउ टू डू दैट. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 2d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 45 प्लस d अपॉन 10 is equal to 17/6. Let's take the LCM. 90
6D, 2D and 9D. 6 plus 2 8 plus 9 17. So 17D by 90 is equal to 17 by 6. You can see D will be 15. D 15 है, but distance is 4D. So answer will be 4 into 15. That is 60 किलोमीटर. एक बार अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट है पूछिएगा. Shall we move on to the next one? Okay, चलते हैं आगे. Okay. Guys, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बिकॉज बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. बेसिक्स क्लियर होंगे तो वी कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ओके, नाउ I will be talking about average speed. Till now I have just covered one concept, which is distance is equal to speed into time. Now the next concept is average speed. Can we do? Yeah, we will do previous question. अभी हैं और भी questions हम cover करेंगे. Don't worry राधिका. Okay. So average speed में basically क्या होता है, बच्चे जो generally mistake करते हैं, they consider average speed as एवरेज ऑफ स्पीड. वो नहीं करना है, ठीक है. एवरेज स्पीड इज नॉट एवरेज ऑफ स्पीड्स. माई डाउट इन TSD इज मोर टुवर्ड्स लीनियर. अभी कृष्णा वी विल डिस्कस दोज टॉपिक्स ऑल्सो, डोंट वरी. अभी के लिए पहले हम बेसिक्स कवर कर लेते हैं, देन वी विल डेफिनेटली मूव ऑन टू लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस एज वेल. ओके, सो एवरेज स्पीड इज नॉट एवरेज ऑफ स्पीड्स. सो एवरेज स्पीड एग्जैक्टली होता क्या है? So average speed is total distance upon total time. एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सपोज देयर इज अ पर्सन who travels from Delhi to Meerut at a speed of 60 km per hour. He is going from Delhi to Meerut at a speed of 60 km per hour and he is coming back at a speed of 40 km per hour. 60 की स्पीड से जाता है, 40 की स्पीड से आ जाता है. We have to find out his average speed. Now observe this thing. Average speed is total distance upon total time. In this particular question, ना तो distance given है, ना ही time. So distance is also unknown, time is also unknown. Then how to solve this problem? So one way is taking some variables. If I take variable as d, so variables की help से किया जा सकता है. There is another smart way to solve this problem. उसको समझते हैं. This person is traveling at a speed of 60 km per hour. तो if you observe, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कैन आई से और कैन आई सिंप्लीफाई, ये डिस्टेंस हमेशा 60 के मल्टीपल्स में कवर करेगा. दैट मीन्स इफ आई आस्क यू ये पर्सन 1 आवर में कितना कवर करेगा, यू विल से 60 किलोमीटर. इफ आई आस्क यू इन 2 आवर्स, यू विल से 120 किलोमीटर. इन 3 आवर्स 180 किलोमीटर. सो ही विल बी कवरिंग डिस्टेंस इन द मल्टीपल ऑफ 60. जब वो वापस आता है, दिस टाइम ही विल बी कवरिंग डिस्टेंस इन द मल्टीपल ऑफ 40. So to make my calculation easy, what I am doing, I am taking distance as a multiple of 60 and 40. ठीक है? So 60 and 40, which is 120 kilometer. Okay, so 120 kilometer मैंने ले लिया, right? अब उससे फायदा क्या हुआ? So this person is going from Delhi to Meerut, 120 kilometer. He is coming back from Meerut to Delhi, again 120 kilometer. So total distance will be 120 plus 120. Now let's focus on total time. Time we know distance upon speed. This person is covering 120 at a speed of 60. बंदा 120
60 की स्पीड से कवर करता है. So we can say he will take 2 hours. Now 120 at a speed of 40. So he will take 3 hours. So average speed will be 240 upon 5, that is 48 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, एक तरह से डिस्टेंस क्या हो गई, इररेलेवेंट, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, बिकॉज आई अज्यूम 120, तब भी मेरा आंसर निकल गया. सो ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफी लोग इसको वेरिएबल्स की हेल्प से करते हैं, बट यू कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अजम्पशन ऑल्सो. इज दिस अप्रोच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? Self learner, thanks for this information buddy. Let's hope आगे कुछ ऐसा होगा. Okay guys, आगे चलें. Okay, वो बेसिक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. राधिका, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम अजम्पशन को यूज कर सकते हैं. मैं आने वाले बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. दिस जस्ट अ इंट्रो टू दिस अजम्पशन मेथड. जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं साथ में कि हाउ वी कैन यूज दैट अजम्पशन मेथड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो राधिका बस चैनल पे बने रहना, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. ओके, सो 1/4 ऑफ ए सर्टेन जर्नी. Let's make a diagram to understand this problem. 1/4 of a certain journey. So 1/4 of distance. Let's say D. Just अभी मैं solve नहीं कर रहा हूँ, just to make you understand, I'm writing this in the form of a diagram. So 1/4 of a distance is covered at a rate of 25. 1/3 of it, 1/3 of the distance, right? At a rate of 30. And the rest remaining, which I do not know, the remaining distance at a speed of 50. Okay, I need to find out the average speed. I learnt one thing from the previous problem, that average speed is irrelevant of distance. Distance से कोई फर्क नहीं पड़ता है. So I can apply the same concept in this problem also. How? Observe. डिस्टेंस का 1/4 कर रहे हैं, सो वी कैन से डिस्टेंस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. डिस्टेंस का 1/3 कर रहे हैं, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? टू मेक माई कैलकुलेशन ईजियर आई कैन डू दैट. मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 3, सो कैन आई से मल्टीपल ऑफ 12. ये पार्ट क्लियर है सबको? डिस्टेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 12. ओके, सो अगर डिस्टेंस 12 का मल्टीपल है, तो मैं यहां पे कोई भी डिस्टेंस जो अज्यूम करूंगा वो 12 का मल्टीपल अज्यूम करूंगा. अब वो कौन सी वैल्यू अज्यूम की जाए वो देखना जरूरी है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, दिस नंबर इज 25, दिस नंबर इज 30, दिस नंबर इज 50. फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन टेक वन हेल्प, दैट this speed is 50, this speed is 30, this speed is 25. So if I take a number which is a multiple of 10, so my calculation will be little bit easy. The main reason is क्योंकि जो भी डिस्टेंस आएगा मैं उसको डिवाइड करूंगा 30 से, यहाँ पे 50 से. So if I take a distance which is a multiple of 10 as well, so my calculation will be more easy. So that's why I took distance as 120. First reason is multiple of 4 and 3. That's why distance I took as a multiple of 12. Another reason, I will be dividing by 30, 50. So that's why I took distance as a multiple of 10 as well. So distance I took 120 किलोमीटर. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान बना. So let's go back to the question again. 1/4, 120 का 1/4, 30 किलोमीटर at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर. 1/3, 1/3 of 120, 40 किलोमीटर at a speed of 30 kilometer per hour. And the rest means remaining. So out of 120, 30 is gone, 40 is gone, that means 70 is gone. So we are left with 50. So 50 kilometer at a speed of 50 kilometer per hour. Now अब देखो जो नंबर्स हैं वो कितने फेवरेबल नंबर्स हैं.
बिकॉज जनरली हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स में डील करते हैं, ना कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. वी डू नॉट से टू अनदर पर्सन कि भाई x रुपीज दे दे या y रुपीज दे दे, या मैं x की स्पीड से चलता हूँ या y की स्पीड से चलता हूँ. बट वी यूजली टॉक अबाउट दिस थिंग कि आई एम ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर और आई एम ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तो जितना क्वेश्चन अपने कंफर्ट जोन में लेकर आओगे उतना अपने लिए ईजी होगा. सो लेट्स गो बैक टू द कॉन्सेप्ट. वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज total distance, which is 120 upon total time. Time is distance upon speed. So 30 by 25 plus 40 by 30 plus 50 by 50. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, ओके. सो 120 अपॉन, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा. सो 5 इंटू 3 15 एलसीएम आ जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा ये 18, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 15. सो ये ऊपर चला जाएगा. सो 120 इंटू 15 इज 1800. दिस इज 18 प्लस 15 33 प्लस 20 53. सो आंसर विल बी 1800 बाई 53. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. कोई डाउट इसमें गाइस? हेलो अरविंद. ओके गाइस, shall we move on to the next one? ओके, ठीक है, चलते हैं आगे. I will be discussing the very important concept of TSD, which is ratio in TSD. So I will be combining ratio with TSD. थोड़ा साथ में समझते हैं. So everyone is aware about this formula. सर 300 सकते हैं क्या? 300 ले सकते हैं क्या? बेटा अजम्पशन में यू कैन टेक एनीथिंग. तिशिका, अगर आप 1 भी लोगे ना देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर. बट अजम्पशन में व्हाट वी यूजुअली डू, वी टेक सम नंबर्स जो हमारी कैलकुलेशन को आसान करें. दैट्स द पर्पस. हाँ प्रणव, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. बट कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है. हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. आई होप मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को आपको पास ऑन कर पा रहा हूँ. सो वो इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो समझ पा रहे हो तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है. ओके, सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. सो वी ऑलरेडी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो कैन आई से फॉर सर्टेन स्पीड, लेट्स से s1, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, लेट्स से t1, the distance is d1. For certain time period t2, for certain time period s2, distance is d2. I hope these equations are clear to each and every one. So ये दो equations हमें मिल चुकी हैं. अब थोड़ा ध्यान से समझना इस पार्ट को. So अगर मैं आपसे बोलता हूं if speed is constant, if speed is constant and if I divide first by second, so first by second, can I say d1 by d2 on the left hand side? Right hand side में s1 and s2 will get cancel out because speed is constant, speed is same. So can we get this relation? That relation says if speed is constant, ratio of distance is same as ratio of time. ये पार्ट सबको क्लियर है? इसका एप्लीकेशन मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं. अभी के लिए बस ये बता देना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके, सेकंड, इफ आई आस्क यू इफ टाइम इज कांस्टेंट, सो टाइम इज कांस्टेंट में t1 एंड t2 आर सेम, सो कैन आई से d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2?
रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज सेम एज रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, दो रिलेशन हमें मिल चुके हैं। थर्ड रिलेशन कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है if distance is constant, so S1 into T1 is equal to S2 into T2. D1 is equal to D2, so S1 into T1 is equal to S2 into T2. So from this we can get this relation. The relation is ratio of speed is inverse of ratio of time. That means speed का relation time से inverse हो जाता है। इन तीनों में कोई डाउट है तो बताइएगा। कैन यू लेट मी नो हाउ लॉन्ग विल द सेशन बी? रोहित, वी विल ट्राई टू रैप अप दिस सेशन बाय 6:30. इट मे गो लॉन्गर बाय 6:45, बट 6:45 इज द मैक्सिमम टाइम। ओके, ये 3 कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुए? ओके, सो अब इनके एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट आई एम डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन रिलेट कि उसका कैसे यूज होता है। एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। मैं फिर से ये बता देता हूं, ये मतलब नहीं है इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ माय कॉन्सेप्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि वही सॉल्यूशन होगा। आप लोग किसी और वे से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसकी एप्लीकेशन साथ में समझते हैं। अ स्टूडेंट रीचेज हिज स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस 10 मिनट्स लेट इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना के चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। So this person is going to school from his home at a speed of 5 kilometer per hour and reaches 10 minutes late. So I took t as the original time. और t मैंने मिनट्स में लिया है, ठीक है? ओके, सो 5 किलोमीटर पर आवर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम लेता है t plus 10 मिनट। Reaches 15 minutes early if he walks at a speed of 8 kilometer per hour. ठीक है गाइस, तो 5 की स्पीड पे चलता है तो टाइम t plus 10 लेता है, 8 की स्पीड से चलता है तो टाइम t minus 15 लेता है। नाउ यू कैन सी एक चीज कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, सिंस ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू स्कूल, सो कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ टाइम। ये आप देख सकते हो। सो आई कैन से 5/8 इज इक्वल टू t minus 15 अपॉन t plus 10। एक चीज ध्यान रखना गाइस, दिस इज इन आवर्स, तो ये भी आपको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। सो फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड बाय 60। बट यहां पे मैं 60 नहीं लिख रहा हूं, इसका रीजन है बिकॉज 60 गेट्स कैंसल आउट बिकॉज वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ रेशियो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स सिंप्लीफाई 5t plus 50, 8t minus 120. So 3t will be 170 और t is equal to 170 by 3. ये गाइस मिनट में आया है आंसर, ये ध्यान रखिएगा। So this is in minute. Now what we have to find out? Distance between his school and his residence. We know distance is speed into time. Speed is 5, time is t plus 10. So if I put this value here, 5 into 170 by 3 plus 10 divide by 60. 60 to convert minute into hours. Solve कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया 12 टाइम्स। LCM 30 plus 170 is 200 upon 3 into 12. फर्दर कैंसिल आउट कीजिए, ये 3
ये हो जाएगा 50, ठीक है। सो आंसर आ रहा है 50/9, दैट वी कैन से 5.56. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? Okay. Any doubt in this question? Please ask. सर 3t इज इक्वल टू 170 के बाद क्या किया? मिड, हाँ श्योर, देखो प्लीज, t 3t इज इक्वल टू 170 आया, सो t इज इक्वल टू 170/3, सो दैट इज योर टाइम, राइट. ये ओरिजिनल टाइम है जो आपका निकला है. यू हैव टू फाइंड आउट अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, राइट. सो 5 इंटू 170/3 प्लस 10 एंड डिवाइड बाई 60. इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस आंसर एज 5.56. इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? ओके ग्रेट. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं सेम कॉन्सेप्ट पे. प्लीज सॉल्व दिस वन. वेरी गुड गाइस, नाइस. चलिए, सो सी आंसर आया है काफी लोगों का. वेरी गुड. साथ में समझ लेते हैं जल्दी से. सेम प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है. इफ अ मैन वॉक्स एट 4 km/h, टाइम विल बी t+5 and 5t-5. So 4/5 is equal to t-5/t+5. So t is equal to 45 minutes. I hope this part is clear. Now we have to find out the distance. So you can put the value of t here. Divide by 60 to convert minute into hours. Right? ये सारा मिनट में था. ये कैंसल आउट हुआ. 20/6 which is 3.33. इसमें कोई डाउट? Can we move on to the next one? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, साथ में समझते हैं इसको एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू. ठीक है. 2 men P and Q start from X towards Y. So this is X, this is Y. Men P and Q. At the same time, P reaches Y. देखो, they started at the same time. Focus on this word. ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को. ठीक है. P reaches Y. P reaches Y and turns back. And immediately to meet Q. Q से मिलता है, ये Q है. किस पॉइंट पे मिल रहा है? Z. ठीक है. If the distance between X and Y, the total distance is known to us 60. स्पीड आपको पता है 5:3 का रेशियो गिवन है. देन फाइंड द डिस्टेंस XZ. तो XZ की डिस्टेंस मुझे निकालनी है. सपोज ये D है, तो कैन आई से ये 60 माइनस D होगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 60. If this is D, this will be 60 minus D. Now, remember one thing जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ. Whenever 2 or more than 2 people start at the same time,
whenever two or more than two people start at the same time and they meet, वो मिलते हैं कहीं ना कहीं, कहीं भी मिल सकते, वी डू नॉट नो, जैसे यहां पे कहां पे मिले हैं, ये z पे। तो वन थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दैट थिंग इज टाइम। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं तो एक चीज कांस्टेंट रहती है, जो है टाइम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम पे घर पे निकले थे, तो इस वजह से जब मिले तो टाइम कांस्टेंट है। स्पीड कैन बी डिफरेंट, डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट, बट वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज टाइम। और जब टाइम कांस्टेंट रहता है, कॉन्सेप्ट, if time is constant, ratio of distance is same as ratio of speed. That means P और Q जब इस पॉइंट पे मिलते हैं, ratio of speed is 5/3 is equal to ratio of distance. Now observe, P ने कितना डिस्टेंस कवर किया? This is 60 plus D, 60 plus D, and Q ने कितना कवर किया? 60 minus D. Let's cross multiply. So 8D is equal to 120, so D will be 15. So from this you got the value of D, but we are looking for the value of xz, which is 60 minus D, so that's why answer is 60 minus 15, 45 kilometer. That is option number B. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस कॉन्सेप्ट पर है? टाइम इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फिर देन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन कैट 2020, साथ में देखते हैं। लिविंग होम एट द सेम टाइम, सर टीएसटी के सारे सवाल इन फॉर्मेलिक मेथड्स के थ्रू हो सकते हैं। देखो बेटा, क्या है ना कि डिफरेंट वेज हैं। जैसे कुछ एस्केलेटर वाली प्रॉब्लम है, वो एस्केलेटर से होती हैं, कुछ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ना कनेक्शन बिल्ड करना होता है। यू लर्न एवरीथिंग, देन यू ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग विद वन कॉन्सेप्ट। हुआ तो ठीक है, नहीं तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। जैसे कोई रेस का कॉन्सेप्ट है, तो रेस में एक अपने रेस के खुद के सेपरेट कॉन्सेप्ट भी हैं, साथ में आप चाहो तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका कनेक्शन है कि आप किस तरह से कनेक्ट करते हो उसे। शिफा, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, डोंट वरी। आप ना जो भी जनरल क्वेरी है वी कैन डिस्कस आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। अभी के लिए इसमें हम समझ लेते हैं। थैंक यू प्रांजल। ओके गाइस, लेट्स फोकस ऑन कैट 2020 क्वेश्चन। लीविंग होम एट द सेम टाइम, अमल रीचेस द ऑफिस एट 10:15 AM। अब बंदा 10:15 पे पहुंचता है होम ऑफिस। If he travels at 8 km/h, but if he travels at 15 km/h, he reaches at 9:40. Now if you observe, we do not know वो बंदा घर से कब निकला है, right? But we know that he reaches to his office at 10:15. So we do not know कितना टाइम लगा उसको कवर करने में। लेट्स से T मिनट लगा, लेट्स से T मिनट लगा उसको ऑफिस पहुंचने में। बट ड्यूरिंग सेकेंड केस, व्हेन ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 15, ही रीचेस 35 मिनट्स अर्लियर। यू कैन सी द डिफरेंस, 10:15 से 9:40। सो कैन आई से वो T minus 35 मिनट लगेगा, ठीक है। यस माही। Okay, now distance remains constant between home and office, so ratio of speed is inverse of ratio of time.
ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 8t इज इक्वल टू 15t माइनस 15 इंटू 35. 15 इंटू 35 इज इक्वल टू 70. ये इससे कैंसिल आउट हुआ. सो t विल बी 75 मिनट. सो वी कैन से कि इस पर्सन को कितना टाइम लगता है. सो वी नो दैट 75 मिनट. क्वेश्चन में पूछा क्या है, एट वॉट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल सो ही रीच ऑफिस एग्जैक्टली एट 10 AM. 10 AM पे पहुंचना है, मतलब 15 मिनट पहले पहुंचना है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस वी नो स्पीड, दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम. सो 8 इंटू 75, दिस इज योर डिस्टेंस. अब इसी डिस्टेंस को वो बंदा 10 AM पे कवर करना चाहता है. मतलब अगर आप 10:15 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यू कैन से वो ये डिस्टेंस 60 मिनट में कवर करना चाहता है. तो डिस्टेंस आपको पता है ये है. मैं 60 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. बस आपका आंसर आ जाएगा. एक सेकेंड. 15, 4, 5 to 10. Just a second. What I did here is 8 into 75. This is 75. Fine. 15, 4 and 15, 5. I hope I haven't done anything wrong here, but let me see. So this is 8. This is 75. This is 7. 15 into 5, 75. 8 into 75, and he wants to reach exactly at 10. Acha, leaving home at 9, 10 AM. Okay. This is the main problem. So this time, this person leave home at 9, 10, and he reaches at 10 AM. So he wants to cover this distance in 50 minutes. So that's why 8 into 75 upon 50. So 25 से cancel out कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. So 12 किलोमीटर पर आवर. ओके गाइस, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको इनिशियल टाइम नहीं गिवन था, तो यहां पे मैंने टाइम को t मिनट लिया, उसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो टाइम था t माइनस 35 हो गया. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कैट में आया हुआ ही क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो एक्चुअली कैट में यूज होते हैं. Is this part clear to each and everyone? T माइनस 35 कैसे किया था बेटा? देखो आप ध्यान से. इनिशियली आप ऑफिस 10:15 पे पहुंचते हो, अब आप 9:40 पे पहुंच रहे हो, तो देखो आप 35 मिनट्स पहले पहुंच जाते हो ना ऑफिस. सो दैट्स वाई T माइनस 35. हाँ बेटा, उसका रीजन ये था, अगर आप राधिका ऑब्जर्व करो, दिस वाज आल्सो गिवन इन मिनट, ये भी मिनट है, तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई यूनिट्स का. अगर ऊपर वाला मिनट में होता, नीचे वाला आवर में होता, तो हमें फिर सेम यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता. अभी इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आई. चलें आगे गाइस. ओके, ठीक है. ओके गाइस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पे जो अभी हमने जस्ट सीखा है. काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. क्या शॉर्टकट है साथ में समझिएगा. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई and another from Mumbai to Delhi. So one train goes from Delhi to Mumbai, another from Mumbai to Delhi. ठीक है. After meeting at Bhopal, so this is the meeting point, Bhopal. They take 16 hours and 9 hours respectively. So let's say this train is T1 and this train is T2. So train T1 भी यहाँ पहुँच चुकी है, train T2 भी यहाँ पहुँच चुकी है.
ठीक है. सो आफ्टर मीटिंग train T1 takes 16 hours, train T2 takes 9 hours. Fine. To cover the remaining journey, ठीक है. If the speed of the train which head towards Mumbai, इस ट्रेन की स्पीड आपको पता है which is 90 किलोमीटर पर आवर. आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, इसकी स्पीड क्या होगी. तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है. शॉर्टकट कब यूज करना है वो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए. जब भी एक पर्सन यहां पे और एक पर्सन यहां पे होगा एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे के तरफ जाएंगे, दे विल मीट एट सर्टेन पॉइंट. जैसे ये पॉइंट यहां पे भोपाल था. मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, T1 टेक्स सम टाइम, T2 टेक्स सम टाइम. ठीक है, मैं इसको जनरलाइज करके लिखवा देता हूं, देखना ध्यान से प्लीज. दोज हु डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट, आई होप विजिबल है सबको. ये सबको विजिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट्स से कोई पर्सन है P1, ये पर्सन है P2, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. दे मीट एट पॉइंट C. दे आफ्टर मीटिंग, यहां पे पर्सन P1 है, यहां पे पर्सन P2 है. पर्सन P1 को लगता है T1 टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम C टू B, और पर्सन P2 को लगता है T2 टाइम फ्रॉम C टू A. तो इसका रिलेशन होता है गाइस, स्पीड ऑफ P1 अपॉन स्पीड ऑफ P2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1. अ डायरेक्ट शॉर्टकट ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, यहां पे यू कैन सी देर आर 4 अननोन्स. स्पीड ऑफ P1, स्पीड ऑफ P2, T2 एंड T1. T2 एंड T1 टाइम कौन से हैं? मीटिंग के बाद के, मिलने के बाद वाला जो टाइम है. इन चारों के बीच का एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज दिस. ठीक है, अब इसी रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये वाला सेम क्वेश्चन इसी के ऊपर है. दोज हु नो द कॉन्सेप्ट, उनके लिए क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स का है. जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो या तो इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे होते हैं या इसका पूरा डेरिवेशन करके निकाल रहे होते हैं. उससे बेटर ये है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें. ये शॉर्टकट जो है मैंने अभी बताया, इसको याद रख लें. तो दोज हु डू नॉट नो दिस शॉर्टकट, प्लीज नोट डाउन दिस शॉर्टकट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. फिर मैं इसकी एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. सुदीप बेटा, कोई डाउट है क्या? कुछ रह गया है क्या? ये क्लियर हो चुका है? आप बता दीजिए एक बार. डन, ओके. चलिए गाइस, अब अप्लाई कर देते हैं. मैंने आपसे बोला स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन की स्पीड है 90. स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन T2 नहीं पता, अननोन है. अंडर रूट. अब अंडर रूट में आपको ध्यान रखना है कि जो आएगा वो आएगा T2 इज द टाइम टेकन बाय दिस पर्सन एंड T1 इज द टाइम टेकन बाय दिस पर्सन. ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये जो 16 है वो तो T1 का टाइम है, वो नीचे आएगा एंड T2 का टाइम है 9. ठीक है, तो इनवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा. नाउ यू कैन इजिली सॉल्व. 90 अपॉन T2 इज इक्वल टू 3/4. So T2 will be 120 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. सर बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा ना, चाहे कैट हो या नॉन कैट एग्जाम हो, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. तो शॉर्टकट अगर याद होगा तो एक एडेड एडवांटेज रहेगा. इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिलता है. कैट में भी पूछा जा चुका है, काफ़ी साल पहले पूछा गया था. सो इट माइट बी पॉसिबल इस साल आपसे पूछ लिया जाए. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस शॉर्टकट को याद रख लें. एक एडेड एडवांटेज ही है आपके लिए, कोई डिसएडवांटेज नहीं है. हाँ, या इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. राइट.
ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर है ये वाला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए सभी लोग। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड सुदीप। हाँ हर्ष प्रजापति, वी कैन डू दैट, वी विल प्लान, डोंट वरी। ईशान वेरी गुड, राधिका वेरी गुड, तिशिका वेरी गुड, माही वेरी गुड। Okay, so question says a train from Mumbai to Pune and another from Pune to Mumbai start at the same time, cross one another on the route and reach their destination in 4 hour and 1 hour. तो बिल्कुल सेम ही है, आपको अभी देखा आपने क्वेश्चन इस तरह का। If the first train was traveling at a speed of 24, सेकेंड की स्पीड अननोन है x अंडर रूट। अब यहां पे जो टाइम आएगा 4 डिनोमिनेटर में, 1 न्यूमरेटर में, so x will be 48 किलोमीटर पर आवर। सभी लोगों का सही आंसर आया है, वेरी गुड गाइस। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से ऐसा काइंड ऑफ ए चैलेंजिंग क्वेश्चन। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, कोई आप में से इस क्वेश्चन को 2 मिनट में करके दिखाता है तो। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं हुआ है सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, साथ में समझते हैं। लेट्स ट्राई टू डिकोड इट टुगेदर। The ratio of speeds of 3 persons A, B, C is 7:5:6. Now focus on this line. The speed of A is 10 km more than that of C. If you focus on this line, इन दोनों का गैप कितना है? Gap is of 1, right? And the value of 1 is how much? 10. This gap of 1 is equivalent to 10. So can I say the speed of A will be 70, speed of B will be 50, speed of C will be 60. यहां तक कोई डाउट किसी को? पहले यहां पे बताइए कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है? द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय ए एंड सी टू कवर 2 डिस्टेंस विच आर इन द रेशियो 7:d। अब वी डू नॉट नो वो डिस्टेंस कौन सी है, तो उन डिस्टेंस को पता है 7:8 के फॉर्मेट में है वो 2 डिस्टेंस, तो एक को ले लिया 7x, एक को ले लिया 8x। वी कैन डू दैट, राइट? एंड दिस 7x इज कवर्ड बाय ए स्पीड इज 70 and 8x is covered by C, उसकी स्पीड है 60. So the ratio of time taken by A and C will be this, because time is distance upon speed. किसी भी पार्ट में डाउट है तुरंत पूछ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अच्छा था। नाउ इस सेम है, सेम मीन्स इक्वल टू as the ratio of time taken by B and C to cover distances D1 and D2. So D1 is covered by B. B speed is 50 and D2 is covered by C. Speed is 60. ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से इसको। सो यहां पे यार देखो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। या आप ये भी कर सकते थे, इतना नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। यू कैन राइट इन दिस वे एज वेल।
ठीक है, आंसर दोनों तरीके से आ जाता। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट 10 टाइम्स, एंड ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ चला जाएगा। सो आई कैन से D1 is to D2 is 5:8। D1 और D2 का जो रेशियो आया दैट इज 5:8। नाउ D2 is 90 किलोमीटर मोर देन D1। सो गैप नोटिस कीजिए, गैप इज ऑफ 3, द वैल्यू ऑफ 3 इज 90, सो वैल्यू ऑफ 1 विल बी 30, राइट। 5 और 8 का जो गैप है दैट इज ऑफ 3 एंड दैट 3 इज इक्विवेलेंट टू 90, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 30, सो आई कैन से D1 विल बी 150, D2 will be 240. Any doubt till now? Okay, perfect. What is the time taken by B to cover D1 plus D2? So you know D1 and D2. So D1 plus D2 will be 390. Speed of B is 50. So when you solve, you will get 7 plus 4/5 hour, or you can say 7 hour 48 minute. कोई इसमें डाउट है, किसी भी पार्ट में डाउट है पूछ लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपसे नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। फोकस मोर ऑन लर्निंग। कुछ नया सीखने को मिले तो उसको पॉजिटिवली लेना है कि यार कुछ नया सीखने को मिला है, और इसमें डिप्रेशन में या उसमें ये फील नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ। इट्स फाइन, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जोन आउट हो जाता हूँ मिड क्वेश्चन में। आई अंडरस्टैंड, यस सभी के साथ होता है, आई टोटली रिलेट विद दिस। करना क्या है, यू हैव टू गो स्टेप वाइज। हाउ? व्हेन यू सी दिस डेटा ABC, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नोट डाउन दिस डेटा, मतलब लाइन बाइज लाइन जाइए। पहली लाइन पढ़ा, उसको कनेक्ट किया, उसको डेटा को लिख लिया। फिर देखना है क्या ABC के बारे में कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकता है। अगर मिला तो ठीक, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन को पढ़ने गए, उसका क्या मतलब है उसको डिकोड किया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो चीज़ें कम कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। कृष्णा लास्ट में अगर सही नहीं हुआ तो सही नहीं हुआ, बिकॉज यू नो दैट स्टेप वाइज मार्किंग तो नहीं है, आंसर सही आया तो ही सही माना जाता है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, जल्दबाजी ना करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जो आंसर है सही है या नहीं। और यश थोड़ा सा प्रोसेस पे बिलीव करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट अगर आप क्वेश्चन से डरने की जगह उनको कनेक्ट करना सीख गए तो फिर सिलेक्शन ईजिली हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्योर। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ नया सीखेंगे। बाय गाइस।